Today I have come to you with a poem composed by Mr. Winston Hogg Auden. In short, we can say Mr. W. H. Auden. In this present poem, whose name is Now the Leaves Are Falling Fast. अब पत्तियाँ तेजी से गिर रही हैं. At a glance, there is no meaning of this sentence, but while we think about the spiritual as well as philosophical nature of this particular poem, we are enforced to learn much about him as well as from this poem, Now the Leaves Are Falling Fast. Mr. W. H. Auden, as we know, Mr. W. H. Auden was born in 1907, died in 1973, who won the Pulitzer Award in 1948 for his collection, The Age of Anxiety. He was born in England, however, latterly he left England in 1939 and settled in United States. His main collections are The Orators, The Dance of Death, Look a Stranger, Spain and Another Time, New Year Letter, For the Time Being, Age of Anxiety. Here in this poem, Now the Leaves Are Falling Fast, Mr. Auden has compared two basic things. He compared the falling leaves of a certain tree in the autumn season with the physical capability, the physical ability of a person in his oldhood age. This poem shows the cyclic nature of life cycle of a life. Mr. Auden, as I told you, has beautifully compared two basic things. Once again, I would like to repeat: the falling leaves of a certain tree. As we know, in the autumn season, the leaves of a tree has been fallen down quite rapidly. So, Mr. W. H. Auden has compared the falling leaves of a certain tree in the autumn season with the physical capability of a person in his oldhood age. Now, I am coming to the poem. This poem, Now the Leaves Are Falling Fast, has 5 stanzas, and in all 5 stanzas there are many metaphoric segments, metaphoric elements. In the first stanza, Mr. W. H. Auden has compared the falling leaves of a certain tree. Once again, I would like to repeat: the falling leaves of a certain tree with the physical capability of a person in his oldhood age. So, ultimately, this poem has many elements. First of all, this poem is filled with spirituality, philosophy, and this poem is of bilingual also. That's why, because this poem has two angles. First of all, Mr. Auden indicates the falling leaves of a certain tree in the autumn season, and secondly, he indicates the physical capability of an elderly person, of an old man in his oldhood age, particularly after 60 or 70. The physical capability of a person has been decaying quite rapidly. Ultimately, that has been compared with a falling leaves of a certain tree in the autumn season. In the first stanza, Now the leaves are falling fast, nurse's flowers will not last, nurses to the graves are gone, and the prams go rolling on. Nurse's flowers means helping flowers, rest flowers or leaves, and prams mean a vehicle which is made up for a child, that is bacha gari. Now the leaves are falling fast,
Nurse's flowers will not last means the leaves are falling fast because it is the autumn season, and nothing will left on the tree. Each and every leaf and flower will be fallen down, and the proms go rolling on. Once again, the childhood has come to that old man. According to William Shakespeare, oldhood is the second childhood, and ultimately the nature of childhood has been shown on the face of that old man, as well as the physical capability, nature in each and every segment. An old man is just like a child. In the second stanza, Mr. Auden says, whispering neighbors left and right. Whispering neighbors means messenger of death, that is Yamdut in our society. Whispering neighbors moves left and right to that person, to that old person, and he wants to break his life. Pluck us from the real delight means he wants to break his life. His hands, which was much active in his younghood as well as adulthood, now has been frozen down, and he hasn't capability to be stood up, so he has sat down on his separate knees. Now he says hundreds and hundreds of his ancestors has been died earlier before him, so he is not being frustrated. He is not frustrated because he says this is the part and parcel of human life. This is the part and parcel of my life, every human life. So he is not frustrated. He says, Mr. Auden says, that old man sees hundreds and hundreds dead person before him. Each and every person, each and every old man follow wooden track. It means while a child is born, he always moves and moves and moves towards his wooden track. His arms, which was quite active in his life, during his life, now is defeated to reprove, and still he is in false attitude of love. Still the attention, the affection towards his children is remain. Starting from the leafless fruit, that old man is just like a tree without leaves, and practically while we watch a man of 90, a man of 95, he just looks like a tree without leaves. So a tree without leaves has been compared with that old man. And trolls is an imaginary creature which has been imagined northern part of Europe. Trolls run scolding for their food. Trolls are running for their food, and Nightingale is dumb for that old man because he is not able to listen anything due to the lack of physical capability, and the angel will not come. Any human prosperity, angel means human prosperity, any human prosperity will not help him. And in the last stanza we can watch cold impossible ahead. His body is too cold that his life is, it seems impossible to ahead his life. His body is too cold that it seems impossible to continue his life. And once he was blessed with mountains lovely heat, he was blessed with white waterfall, but there is no possibility now. And lastly he says, travelers in their last distress. This old man feels last distress. That last distress means the distress of death. So he is on his deathbed. Lastly,
he ends his life. That is the summary of this particular poem. Now I am switching over into Hindi. Mr. W.H. Auden has compared, as I told you, this poem filled with spirituality, bilingualism, as well as philosophy. In his first stanza he says, now the leaves are falling fast, अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, nurses flowers will not last. अब nurses flowers means helping flowers, सहायक पुष्प और पत्तियां भी अब टिकने वाले नहीं, लास्ट मीन्स टिकना. अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, बचे खुचे पुष्प और पत्तियां भी अब नहीं टिकेंगे. नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, अब सभी पत्तियां मिट्टी में मिल चुकी हैं. ग्रेव्स मीन्स कब्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिट्टी के सेंस में यूज़ किया गया है. सभी मिट्टी में मिल चुके हैं, अर्थात फिर से अब वो फिजिकल कैपेबिलिटी. अब जैसा कि मैंने कहा कि ये बाइलिंगुअल पोएम है, तो हमें दोनों तरफ, दोनों एंगल से सोचना पड़ेगा. एक तरफ ये पेड़ की तेज़ी से गिरती हुई पत्तियाँ, पतझड़ के मौसम में जो पेड़ की तेज़ी से गिरती हुई पत्तियाँ हैं उस तरफ इशारा कर रहे हैं, और तुलना करते हुए बुढ़ापे की अवस्था में जो मनुष्य की तेज़ी से डाउन होती हुई, कम होती हुई, खत्म होती हुई उनकी शारीरिक क्षमताएं हैं, उस तरफ भी संकेत किया जा रहा है. तो ये बाइलिंगुअल, द्विअर्थी, जिसको हिंदी में कहें, कविता है. तो कह रहे हैं पहले स्टांजा में कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं. नर्सेस फ्लावर्स मतलब बचे खुचे सहायक पुष्प और पत्तियां विल नॉट लास्ट, लास्ट मीन्स टिकना, अब वो भी टिकने वाले नहीं है. नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, ये सारी पत्तियां और या ये सारी उनकी सारी पत्तियां पेड़ की कहें, या सारी शारीरिक क्षमता जो उस बूढ़े की हैं, वृद्ध व्यक्ति की हैं, वो अब मिट्टी में मिल चुकी हैं. एंड द प्राम्स को रोलिंग ऑन, और बच्चा गाड़ी फिर से आ रहा है, मतलब फिर से बचपना उस वृद्ध व्यक्ति में आ रहा है, उस वृद्ध व्यक्ति में फिर से बचपना आ रहा है. फिर से देखें इस स्टांजा को. नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं. नर्सेस टू फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, अब बचे खुचे पुष्प और पत्तियां भी नहीं टिकेंगे. नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, अब सारी पत्तियां मिट्टी में मिल चुकी हैं और फिर से बचपन आ रहा है इस वृद्ध व्यक्ति को. एक लास्ट स्टांजा देखें. यमदूत उसके दाहिने बाएं घूम रहा है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, यमदूत इसके दाहिने बाएं घूम रहा है. प्लकस फ्रॉम द रियल डिलाइट, इसके वास्तविक आनंद को, यानी कि जीवन को तोड़ देने के लिए, जीवन को तोड़ देने के लिए यमदूत इसके दाहिने बाएं घूम रहा है. इसके सक्रिय हाथ, जिसे इतने सारे काम अपने युवावस्था में या वयस्क की अवस्था में इन्होंने किए थे, वो सब फ्रीज हो गए हैं, जम गए हैं, सुस्त हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं, रुक से गए हैं, और घुटनों के बल अब वह बैठ गया है, अब उसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता. विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, अब यमदूत दाहिने बाएं घूम रहा है, उसके वास्तविक जीवन को तोड़ देने के लिए, खत्म कर देने के लिए. उसके सक्रिय हाथ फ्रीज कर गए हैं, सुस्त कर गए हैं, और घुटनों के बल वह अब बैठ गया है. डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, पीछे मुड़ के देखता है तो सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं. उसके जितने भी एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, सब तो मर गए हैं. कोई भी मनुष्य अस्थाई या हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं आता. रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा भी है, मीटिंग एंड पार्टिंग आर द यूजुअल वे ऑफ लाइफ, मिलना बिछड़ना जीवन का एक वास्तविक नियम है. एवरीवन हैज़ कम हियर टू गो अवे फॉर एवर, हर व्यक्ति यहाँ आता है हमेशा हमेशा के लिए चले जाने के लिए ही आता है. तो पीछे मुड़ के देखता है तो सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं. फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, सब लोग उस ताबूत का पीछा कर रहे हैं. जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वह अपना कदम मौत के तरफ धीरे धीरे बढ़ाता रहता है. कोई 80 साल में उस ताबूत के अंदर चला गया, कोई 90 साल में चला गया, कोई 85 साल में, कोई 75 साल में, या कुछ अल्पायु में ही उस ताबूत के अंदर चला जाता है. तो सब लोग उसी ताबूत के तरफ भागे चला जा रहा है. आर्म्स रेज स्टीपी टू रूट, सब जो बाहें उठ खड़ी होती थी अब सुस्त पड़ गई है. इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, लेकिन अभी भी वह वृद्ध व्यक्ति प्यार के झूठे भावना, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में माया जाल, मोह जाल कहते हैं, उसी में पड़ा हुआ है. स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, पत्र विहीन नग्न पेड़ के समान हो गया है. वास्तव में बिना पत्तियों के अगर पेड़ देखें तो बिल्कुल 85-90 साल के व्यक्ति की तरह वो पेड़ दिखाई ही देता है. देखने में भी फिजिकली ऐसा दिखाई देता है, इसलिए दोनों की तुलना किया गया है कि वह वृद्ध व्यक्ति पत्र विहीन या बिना पत्तियों के पेड़ के समान हो गया है.
ट्रॉल्स एक काल्पनिक प्रजाति, जैसे भूत, पिशाच, प्रेत वगैरह यहाँ पर कल्पना कर ली जाती है, परी, राक्षस इत्यादि। इसी तरह से पश्चिमी और उत्तरी भाग, जहाँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इत्यादि देश हैं, वहाँ पर ट्रॉल्स एक काल्पनिक प्रजाति है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके सामने जो कुछ भी पड़ा वो काल्पनिक है, कल्पना की गई है, जो भी पड़ता है उसको खा जाता है। तो ट्रॉल्स उसके तरफ मुंह फैलाए भक्षण कर जाने के लिए, अपने भोजन के लिए, भक्षण के लिए मुंह फैलाए आ रहा है उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ। एंड द नाइटिंगेल डम, अब बुलबुल उसके लिए गूंगी हो गई है। बुलबुल गूंगी नहीं हुई, बुलबुल तो हर युग में गाती है, लेकिन वह व्यक्ति बहरा हो गया। ये कवि की एक अलग एक विधा होती है किसी भी कवि की कहने की। बुलबुल गूंगी उसके लिए हो गई है, पूरी दुनिया के लिए नहीं हुई। अर्थात कोई भी मधुर संगीत उसके लिए बेकार है चूँकि वह बहरा हो गया है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई भी मानवीय जो कलाएं हैं अब काम देने वाले उसको नहीं है, अब कोई भी उसे बचा नहीं सकता। अंतिम पैराग्राफ है, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, उसका शरीर इतना ठंडा पड़ गया है कि उसके जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना उसके लिए असंभव हो गया है। जो पहाड़ों के सुंदर सुंदर शिखरों, उजले झरनों से उसे आशीर्वाद मिला करता था, अब वो आशीर्वाद उसे बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि देयर इज़ नो रेमेडीज ऑफ एन ओल्ड मैन, ओल्डहुड एज, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। उससे कोई आशीर्वाद उस पहाड़ों के शिखरों से या उस झरनों से, अक्सर ऐसा देखा जाता था, अभी भी देखा जाता है कि लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन अब इस वृद्ध व्यक्ति को पहाड़ों के सुंदर शिखर और सुंदर झरने से कोई आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यह राही, यह बटोही अब अंतिम पीड़ा, लास्ट डिस्ट्रेस माने अंतिम दर्द, यानी कि मौत का दर्द, अंतिम पीड़ा, अंतिम दर्द को महसूस कर रहा है। मौत के बाद तो कोई दर्द होता ही नहीं। इस तरह कहा गया कि ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, अब यह राही, यह बटोही, यह पथिक, यह ट्रेवलर अंतिम दर्द को, अंतिम पीड़ा को महसूस कर रहा है। वंस अगेन, एक बार फिर से हम लोग हिंदी में देख लें। अब पत्तियां तेज़ी से गिर रही हैं, बचे कुचे पुष्प और पत्तियां भी अब नहीं टिकने वाले हैं, अर्थात वो भी गिर जाएंगे। ये सारी पत्तियां मिट्टी में मिल चुकी हैं और फिर से बचपना आ रहा है। प्राम सेंस बच्चा गाड़ी, लेकिन यहाँ सेंस हुआ फिर से बचपना आ रहा है इस वृद्ध व्यक्ति को। यमदूत उसके दाहिने बाएं घूम रहा है उसके जीवन को तोड़ देने के लिए। सक्रिय हाथ अब सुस्त पड़ जाएंगे, जिससे इतने वो हाथ सक्रिय थे, इतने सारे काम उन्होंने अपने जीवन काल में किए थे, लेकिन अब वह घुटने के बल बैठ गया है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता। पीछे मुड़ के देखता है तो सैकड़ों लोग उससे पहले मरे पड़े हैं। सब लोग उसी ताबूत का पीछा कर रहे हैं। आज भी दुनिया में जो बाहें उठ खड़ी होती थी अब वो सुस्त पड़ गई है, अभी भी वह प्यार के झूठे भावना में पड़ा हुआ है। वो पत्र भी नग्न पेड़ के समान वह हो गया है, और ट्रॉल्स अब मुंह फैलाए उसका भक्षण कर जाने के लिए उसके तरफ दौड़े हुए चला आ रहा है। और अब कोई भी बुलबुल के गान, बुलबुल की आवाज़ें अब उसे सुनाई देने वाला नहीं है, क्योंकि अब वह बहरा हो गया है। और अब कोई भी मानवीय कलाएं उसके लिए मददगार, उसको मदद करने वाले नहीं है। वह इतना ठंडा उसका शरीर हो गया है कि अब उसके जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना इम्पॉसिबल हो गया, असंभव हो गया है। जो पहाड़ों के सुंदर सुंदर शिखरों से उसे आशीर्वाद मिला करते थे, उजले झरनों से उसे आशीर्वाद मिला करते थे, अब वो सब कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब यह बटोही, यह ट्रेवलर्स अब यह अंतिम पीड़ा को, अंतिम दर्द को महसूस कर रहा है। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस।